My friends, I come with a cheerful heart to receive the word of God with you today. प्रिय मित्रों, आज बड़े उत्साहित हृदय के साथ आपके साथ मैं हूं कि परमेश्वर के वचनों को ग्रहण करें। When God speaks, He perfects it in our life. जब परमेश्वर कहता है तो उसे हमारे जीवन में सिद्ध भी करेगा। He speaks to us today from Deuteronomy 14:2. व्यवस्था विवरण 14:2 से परमेश्वर आज हमसे बातें It करेंगे। says, "The Lord has chosen you to be His treasured possession." परमेश्वर ने तुझे अपनी निज संपत्ति होने के लिए चुन लिया है। That's a great thing, my friends. और यह तो बहुत अद्भुत बात है To be chosen by God to be His treasured possession so that His eyes are on you. परमेश्वर हमें चुन ले कि उसकी निज संपत्ति हो जाए ताकि उसकी आंखें हम पर बनी रहे। When I was in school and in my middle school years, जब मैं अपने मिडिल स्कूल के समय में था, there I loved a game which my coaches, PT teachers used to tell me. और मैं उससे प्रीति रखता जो मेरे पीटी टीचर्स और कोच मुझे सिखाते। We used to play handball. और हम हैंडबॉल खेला करते। We were separated into different houses of color. विभिन्न रंग के हाउसेस में हमें विभाजित किया गया था। And I wanted our team to win very badly. और मैं चाहता था कि हमारी टीम किसी प्रकार से जीते। So even in the recess breaks, we would all gather together. I would come up with strategies to win. और खाने की छुट्टी के दौरान भी हम मिलकर एकजुट होकर योजना को बनाते कि किस प्रकार से हम जीतें। And I was so happy that in one of the tournaments, और मैं बहुत खुश था कि एक टूर्नामेंट के दौरान the coach said, "Sam, you can be the captain of the team. Go and lead our team." कोच ने कहा कि सैम तुम कप्तान बनोगे, जाकर टीम की अगुवाई करो। I was jumping मैं खुशी से उछल पड़ा because for me at that time handball was a great thing. क्योंकि उस समय हैंडबॉल मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी। So happy and joyful. मैं बड़ा खुश और आनंदित हुआ। Yes, in the same way, even in your life, it is your time to be chosen. और आपके जीवन में भी आपका एक समय है चुन लिए जाने का। Chosen by God Himself, परमेश्वर के द्वारा चुना the जाना। Almighty God. परमेश्वर जो प्रतापी है। Above all, to be chosen to be His treasured possession. सबसे बड़ी बात कि उसकी निज संपत्ति होने के लिए चुन लिए जाना। Today, the people around you might be putting you down, saying, "Go at the back of the line." हो सकता है आज आपको लोग पीछे कर रहे हैं कि तुम पीछे जाओ। Not choosing you to be a team leader. आपको अगुवे होने के लिए नहीं चुनते। Not choosing you to be the front runner. आगे चलने के लिए नहीं चुने जाते To be the promoter. ताकि आप प्रमोटर हो। But they might have put you in a forgotten हो place. सकता है आपको एक भूले हुए स्थान में छोड़ दिया है। But my friends, लेकिन मेरे दोस्तों, your life is in the hands of the Almighty God, chosen to be a treasured possession. आपका जीवन तो परमेश्वर प्रतापी के हाथ में है जिसने आपको चुन लिया है निज प्रजा के Never रूप में। forget that. वो आपको नहीं भूलेगा। You are a captain in His hands. आप कप्तान है उसके हाथों में, In the purpose He has for you. उस उद्देश्य में जो उसके पास आपके लिए Very है। soon He will make you flourish. बहुत जल्दी वो आपको फलवंत करेगा। Don't ignore this great choosing by God. इस महान चुनाव को परमेश्वर की अनदेखा ना करें। Value it. इसका आदर Shall करें। we thank Him for it? क्या इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें? Thank you, Lord. धन्यवाद परमेश्वर। Even if the world rejects us, हो सकता है संसार हमें छोड़ even if दे, the world insults us, Lord, जब दुनिया हमारी बेइज्जती करे, even if they look down upon us, Lord. जब दुनिया हमें नीचे गिरा कर देखे। Lord, today you have spoken to me that I am your treasured possession. परमेश्वर आज आपने मुझसे कहा कि मैं आपकी निज संपत्ति हूँ। I am a leader in your hands. मैं एक कप्तान हूँ आपके हाथों में। I am a captain to fulfill your will, Lord. मैं कप्तान हूँ आपकी इच्छा को पूरी You करने want के to लिए। use me, Lord. आप मुझे इस्तेमाल करना चाहते You've हैं। chosen me as a valuable person. एक अनमोल व्यक्ति के रूप में आपने मेरा चुनाव किया है। Thank you, Lord. धन्यवाद परमेश्वर। Thank you for your love. धन्यवाद आपके प्रेम के Thank लिए। you because your hands of blessing are coming upon your children. धन्यवाद आपके हाथों की आशीष आपके बच्चों पर आ रही है। Use them powerfully सामर्थ्य रूप से with इस्तेमाल all करें। the talents, the skills and the abilities, Lord. जो भी उनकी प्रतिभा और काबिलियत है, Let your grace come upon them. आपका अनुग्रह उनके ऊपर आ जाए। Let them shine for your name's sake. आपके नाम के लिए वो चमकदार Let them be glorified. और महिमा से भर जाए। Praise you. आपको स्तुति In दे। Jesus' name. आमीन। Amen. परमेश्वर आशीष दे। इस मौके को मिस ना करें। ತವರ ಬಿಡಾದಿರ್ಗ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಇದು ನಷ್ಟಪಡುತ್ತಿರುವುದು ಮಿಸ್ చేయకండి. हाँ, ये एक ऐसी सभा है जिसको आपको 2025 में नहीं चूकना चाहिए. Your sorrow will turn into joy.
बेत्सदा आशीष सभा, रविवार 13 जुलाई दोपहर 2 बजे। And every lump, every boil, every tumor disappear right now in Jesus' name. मेरा ये कान का सामने में बॉल निकला था 2 साइड में और बहुत ही बड़ा हो गया था। जैसे ही प्रेयर कंप्लीट हो गया तो मैंने टच किया तो ये ऑलरेडी सूख गया था। Big boil was there. बिग बॉल वाज देयर। Now it's completely gone. Absolutely nothing. Thank you, Jesus. We welcome you all on July 13th. 13 जुलाई को हम आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। July 13th is a special day for me. 13 जुलाई तो मेरे लिए बहुत ही विशेष दिन है। That day the Lord anointed me with the Holy Spirit. I know God is going to fill you too. इसी दिन परमेश्वर ने मुझे पवित्र आत्मा से अभिषेक दिया और मैं जानती हूँ आपको भी भर देंगे। It is going to be a great day. ये तो बहुत ही महान दिन होगा There will be deliverance. और छुटकारा होगा। Where the Spirit of the Lord, there is deliverance. जहाँ परमेश्वर की आत्मा है वहाँ पर छुटकारा है। Come and be blessed. आकर आशीष पाइए। We'll wait to pray with you. हम आपके साथ प्रार्थना करने का इंतजार कर रहे हैं। Come with all your friends and family. अपने सभी मित्रों और परिवारों के साथ में आइए। बेत्सदा आशीष सभा, रविवार 13 जुलाई दोपहर 2 बजे। स्थान डॉक्टर DGS दिनकरन सेंटर, कारुण्या नगर, कोयम्बतूर। गांधीपुरम बस स्टैंड और कोयम्बतूर रेलवे स्टेशन से कार्यक्रम स्थल तक विशेष बसें चलेंगी। आवास और यात्रा सहायता के लिए विशेष रूप में अन्य राज्यों या जिलों से आने वालों के लिए कृपया संपर्क करें 9487846601। एक परिवार के रूप में आए।